Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, today we are going to start our term 2 first class, and this is our computer class. In today's class we are starting our term 2 first chapter lesson 5, and our chapter name is computer mouse. Please student, take out your books and open your book page number On 36. Students, I hope I have you open your book page number 36. Our lesson number 5 and our chapter name is computer mouse. Students, do you know that what is computer mouse? Can you find out the difference between house mouse or a computer mouse? Yes, you are right. Computer mouse have buttons on it and have a wire as well. But house mouse doesn't have any buttons on it. And they are living things. Hope you understand the difference between house mouse and a computer mouse. Now proceed with the reading. Put your finger on this line and read after me. Look at the buttons on a computer mouse carefully. A computer mouse can have 2 or more buttons. Nowadays, there is also a mouse with 2 buttons and a scroll wheel at the center. The scroll wheel helps you move up and down a page. First, I will explain you this paragraph and then we are further continue the reading. Okay, so look at the buttons on a computer mouse carefully. Just look at this picture very carefully. There are different kinds of mouse. Okay, so first just check out this picture very carefully. Have you seen a buttons on it? Yes, there are buttons on this picture on this mouse. This one is the right button and this one is the left button, and there is a wire as well with this mouse. So computer mouse have 2 buttons or more than 2 buttons. Okay, so nowadays there is also a mouse with 2 buttons and a scroll wheel at the center. With the advancement of many different things, our computer mouse are also advanced and it becomes quite modern. This advanced computer mouse has button on it, as well as they have a scroll wheel at the center. Okay, इस कंप्यूटर माउस में ये कंप्यूटर माउस जो है ये पुराना कंप्यूटर माउस है, and this one is a modern, is a advanced computer mouse. ये कंप्यूटर माउस एडवांस है, मॉडर्न कंप्यूटर माउस है. इस कंप्यूटर माउस में 2 बटन्स होते थे जो कि पुराने यूज़ किए जाते थे. नाउ अब क्योंकि चीज़ों में एडवांसमेंट हो गई है, इसके साथ साथ हमारी माउस भी बहुत एडवांस हो गया है, और इस माउस में सिर्फ बटन्स नहीं होते. इस बटन के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक व्हील भी दिखाई दे रहा होगा. तो ये एडवांस कंप्यूटर माउस है, इसमें बटन्स के साथ साथ व्हील्स भी होते हैं. और ये व्हील्स क्यों यूज़ होते हैं? द स्क्रॉल व्हील्स हेल्प यू मूव अप एंड डाउन अ पेज. कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमारा पेज होता है, उस पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए ये स्क्रॉल व्हील यूज़ होता है. हम विदाउट हाथ मूव किए हुए, हाथ को मूव किए बगैर हम इस स्क्रॉल व्हील से कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पेज हमें शो हो रहा होता है उससे हम अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 37. नाउ रीड आफ्टर मी. द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग अ माउस. The proper way to place the mouse is on a mouse pad. Just as you sit on a chair, there is a special seat for the mouse called the mouse pad.
Student, first I will explain this paragraph to you, then we further proceed to the next paragraph reading. Okay students, so in this paragraph, we will learn proper way of using a mouse. In this paragraph, we will learn that what is the proper way of using a mouse and how can we use the mouse properly. हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि माउस को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है और माउस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. द प्रॉपर वे टू प्लेस द माउस इज़ ऑन अ माउस पैड. माउस पैड को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप उसको एक माउस पैड के ऊपर रखकर इस्तेमाल करें. जिस तरह के आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज़ अ माउस एंड इट प्लेस ऑन अ माउस पैड. जस्ट चेक आउट दिस पिक्चर कि यहाँ पे आपको एक माउस दिख रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि ये माउस एक माउस पैड के ऊपर रखा हुआ है. एक ब्लू कलर के स्क्वायर शेप में एक पैड के ऊपर रखा हुआ है. दिस पैड इज कॉल्ड अ माउस पैड. ओके, इस पैड को हम माउस पैड कहते हैं. जस्ट एज यू सिट ऑन अ चेयर, जिस तरह हम सब चेयर्स पे बैठते हैं, देयर इज अ स्पेशल सीट फॉर द माउस कॉल्ड द माउस पैड. इसी तरह से माउस को भी रखने के लिए, माउस को भी बैठाने के लिए एक स्पेशल सीट होती है और इस सीट को, माउस के सीट को हम माउस पैड बोलते हैं. ओके क्लास, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि माउस पैड क्या होता है और हमें माउस हमेशा माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए. नाउ रीड आफ्टर विथ मी. Also, the button of the mouse should always point towards the computer. It becomes easy to use the mouse that way. The mouse should not be turned sideways. Okay? जिस तरह यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, also the mouse button of the mouse should always point toward the computer. कि माउस के जो ये दोनों बटन्स होते हैं, ओके, माउस के जो दोनों बटन्स होते हैं ये हमेशा हमारे कंप्यूटर के फेस की तरफ होना चाहिए. जिस तरफ हमारा कंप्यूटर होता है, जिस तरफ हमारा मॉनिटर होता है, इसी तरह से हमारे माउस का बटन भी हमारे कंप्यूटर के सामने होना चाहिए. इट बिकम्स ईजी टू यूज़ द माउस दैट वे. इस तरह से हमें माउस को इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होती है. हम बहुत आसानी के साथ माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं. द माउस शुड नॉट बी टर्न साइडवेज. माउस कभी भी टर्न होके, माउस के बटन की जो साइड्स हैं वो कभी भी आपके सामने नहीं होनी चाहिए. माउस का बटन जो है हमेशा वो हमारे कंप्यूटर के सामने होना चाहिए, ना कि वो हमारी तरफ टर्न हो. अगर माउस के बटन्स हमारी तरफ टर्न होते हैं तो इस माउस को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर हम माउस के जो बटन वाली साइड्स होती हैं उसको अगर हम कंप्यूटर के फेसिंग पर रखें, कंप्यूटर की तरफ रखें, तो उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है. नाउ रीड आउट विथ मी. लुक एट द पिक्चर बिलो केयरफुली. द माउस हैज़ बीन प्लेस्ड प्रॉपरली ऑन अ माउस पैड and is pointing towards the computer. Just check out this picture. इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें माउस को कहाँ रखना चाहिए और माउस को किस तरह से रखना चाहिए. ओके, इस पिक्चर को अगर आप केयरफुली देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ आ जाती है. द माउस हैज़ बीन प्लेस्ड प्रॉपरली ऑन अ माउस पैड. आपको दिख रहा होगा कि इस पिक्चर में माउस जो है वो प्रॉपरली एक माउस पैड के ऊपर रखा हुआ है. ये जो ब्लू कलर का आपको एक पैड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द माउस पैड. माउस पैड ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर शेप में ही हो, माउस पैड किसी भी शेप में हो सकता है. ओके, तो हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि माउस जो है वो एक पैड के ऊपर रखा हुआ है और माउस के जो बटन्स हैं, आपको ये दोनों बटन्स दिख रहे हैं, माउस के जो दोनों बटन्स हैं वो किस तरफ पॉइंट करें, कंप्यूटर की तरफ पॉइंट करें. माउस के जो बटन्स हैं वो कंप्यूटर की तरफ पॉइंट करें, कंप्यूटर की तरफ टर्न है. तो दिस इज़ द राइटेस्ट वे टू प्लेस द माउस एंड यूज़ द माउस.
ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सही तरीका है माउस को रखने का और माउस को इस्तेमाल करने का। ओके, सो क्लास के माउस को कहाँ रखना चाहिए, ओके, माउस को किस तरह से रखना चाहिए और माउस को रखने का सही तरीका क्या होता है। नाउ comes to the next page. Now comes to the next page and open your book, page number 38. First, we will read this page, then I will explain you. Look at the picture of our left and right hands. These pictures tell us how to number our fingers. Look at Mashal and Ali. Ali is right-handed and Mashal is left-handed. How will each of them hold a computer mouse? यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि आपको कहा गया है कि इन दोनों पिक्चर्स को आपको बहुत केयरफुली देखना है। आपको इन दोनों पिक्चर्स को बहुत केयरफुली देखना है और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर फिंगर के ऊपर नंबरिंग्स की हुई है। ये नंबरिंग्स क्यों दी हुई है, ये नंबर्स क्यों दिए हुए हैं? ये नंबर्स इसीलिए हमें दिए हुए हैं ताकि हम इन नंबर्स के थ्रू माउस को सही से पकड़ सकते हैं। ये नंबर्स हमें इसलिए बताए गए हैं, जब हम माउस को होल्ड करेंगे, माउस को पकड़ेंगे, तो हमारी कौन से नंबर वाली फिंगर माउस के किस बटन के ऊपर होनी चाहिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर है और यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर है। दिस गर्ल नेम इज मशल एंड दिस बॉय नेम इज अली। लुक एट मशल एंड अली। ओके, अली इज राइट हैंडेड एंड मशल इज लेफ्ट हैंडेड। अली जो है वो राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड का मतलब क्या है कि वो अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करता है अपने काम करने के लिए, लिखने के लिए, माउस पकड़ने के लिए। और मशल जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, वो अपना लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ इस्तेमाल करती है लिखने के लिए, काम करने के लिए, माउस पकड़ने के लिए। अब अगर दो पर्सन्स दो डिफरेंट हैंड यूज़ करते हैं तो वो माउस को भी दो डिफरेंट तरह से पकड़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे अली को, ओके, और देन फिर हम देखेंगे मशल को। फर्स्ट हम सीखेंगे कि अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमारी कौन से फिंगर्स माउस के ऊपर होने चाहिए, और अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो हमारे कौन से फिंगर्स माउस के ऊपर होने चाहिए। स्टूडेंट, जस्ट कम्स टू द नेक्स्ट पेज एंड ओपन योर बुक, पेज नंबर 39 एंड रीड आफ्टर मी। This is how Ali would hold a computer mouse. He would put finger 7 on the left button of the mouse and finger 8 on the right button of the mouse. Okay, इसमें हमें क्या बताया गया? Just look at here. Look at this mouse. ये हमारा एक बटन है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड बटन एंड दिस इज राइट हैंड साइड बटन। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बटन है और ये हमारा राइट हैंड साइड बटन है और सेंटर में हमारा ये स्क्रॉल व्हील है। हमें, अगर आप राइट हैंडेड हो, अगर आप सीधा हाथ यूज़ करते हो तो आप किस तरह से पकड़ोगे अपने माउस को? आपका थंब और आपकी ये दोनों फिंगर, आपकी लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर आपके माउस के सेंटर कॉर्नर्स पे होंगी। और ओके, आपका, अगर आप राइट हैंड हो तो आपका थंब 6 नंबर फिंगर और आपका 10 और 9 नंबर फिंगर आपके माउस के साइडों पे होगा, साइड्स पे होगा, और आपका 7 नंबर फिंगर आपके लेफ्ट हैंड साइड बटन पे होगा और 8 नंबर फिंगर आपके राइट हैंड साइड बटन पे होगा। ओके, सो अगर आप राइट हैंडेड हो तो दिस इज द वे टू होल्ड योर माउस। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप अपना माउस इस तरह से पकड़ोगे। ओके, होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्योंकि अली राइट हैंडेड था तो अली ने अपना माउस किस तरह से पकड़ा? अली का फिंगर नंबर 7 और फिंगर नंबर 8, इसने ये दोनों फिंगर्स यूज़ किए और इसको अपने माउस के बटन्स पे रखा। फिंगर नंबर 7 जो है वो उसके लेफ्ट बटन पे है, माउस के लेफ्ट बटन पे, और फिंगर 8 जो है वो उसके माउस के राइट बटन पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज हाउ अली वुड होल्ड अ कंप्यूटर माउस। इस तरह से कंप्यूटर माउस अली ने पकड़ा कि he would put finger 7 on the left button
ऑफ द माउस, कि उसका जो फिंगर 7 था वो माउस के लेफ्ट बटन पे था एंड फिंगर 8 ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस, और फिंगर 8 जो है वो उसके माउस के राइट बटन पे था। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे चीज़ समझ आई होगी कि हमें माउस को किस तरह से होल्ड और ग्रिप करना होता है। नाउ अब हम आते हैं मशल की तरफ। ओके, अब हम मशल को देखेंगे। फर्स्ट वी विल रीड दिस पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज हाउ मशल would hold a computer mouse. She would put finger 3 on the left button of the mouse and finger 4 on the right button of the mouse. यहाँ पे अब मैं आपको अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हुए बताऊंगी, समझाऊंगी कि अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हो तो आप अपने माउस को किस तरह से ग्रिप करोगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि मशल लेफ़्ट हैंडेड थी, तो अब हम देखते हैं कि मशल अपना कौन से फिंगर यूज़ करती होगी, कौन से बटन के ऊपर। तो यहाँ पे माउस है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मशल, दिस इज़ हाउ मशल होल्ड अ कंप्यूटर माउस। मशल जो है वो कुछ इस तरह से अपना कंप्यूटर माउस जो है होल्ड करती थी, पकड़ती थी। शी वुड पुट फिंगर 3 ऑन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड फिंगर 4 ऑन द राइट बटन ऑफ द माउस। ये अब मुझे बताइए कि इस मेरा कौन सा फिंगर नंबर 3 है, कौन सा फिंगर नंबर 4 है। यस, यू आर राइट, this one is my finger 3 and this one is my finger 4. This one is my finger 3 and this one is my finger 4. Okay, अब मैं अपना फिंगर नंबर 3 अपने लेफ्ट बटन पे रखूँगी। क्योंकि ये बटन लेफ्ट साइड पे है इसीलिए मैं इस पर फिंगर 3 रखूँगी, और क्योंकि ये बटन राइट हैंड साइड पे, तो मैं इस पर फिंगर 4 रखूँगी, और मेरी थंब और मेरे रिमेनिंग 2 फिंगर्स जो हैं वो मेरे माउस के दोनों साइड्स पे चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इफ़ यू आर अ लेफ्ट हैंडेड, so this is how you can hold your mouse. Okay, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि अगर हम राइट हैंडेड होते हैं तो हमें किस तरह से माउस को पकड़ना होता है, और अगर हम लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो हमें किस तरह से माउस को होल्ड करना होता है। सो स्टूडेंट, जस्ट पुट योर फिंगर ऑन दिस लाइन एंड रीड आफ्टर मी। माउस, पॉइंटर, look at the children playing in the park. Can you see Ibrahim pointing his finger at Mohit? क्या इसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है कि एक पार्क की पिक्चर है और कुछ बच्चे इस पार्क के अंदर खेल रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इब्राहिम है जो अपनी फिंगर पॉइंट कर रहा है अपने दोस्त की तरफ, मोहित की तरफ। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी फिंगर पॉइंट कर रहा है? यस, यू आर राइट। ये वो बॉय है जिसका नाम इब्राहिम है जो अपनी फिंगर पॉइंट कर रहा है, अपनी फिंगर से इशारा कर रहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मोहित की तरफ। ओके, नॉर्मली अपनी फिंगर यूज़ करते हैं किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। सेम एज इट इज़ हम कंप्यूटर में भी एक पॉइंटर होता है, एक एरो होता है जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को ओपन करने के लिए, जो हम अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो क्विकली ओपन योर बुक, पेज नंबर 40। So student, just put your finger in this line and read after me. The arrow on the computer monitor is called the mouse pointer. When you move the mouse on the mouse pad, the mouse pointer on the monitor also moves. क्या बताया गया है यहाँ पे कि द एरो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। आपने देखा होगा ना कि कंप्यूटर में एक एरो होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एरो है। दिस एरो इज कॉल्ड अ माउस पॉइंटर। इस एरो को हम क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर बोलते हैं। ओके, और व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, द माउस पॉइंटर ऑन द मॉनिटर ऑल्सो मूव्स। जब हम अपने माउस को माउस पैड के ऊपर मूव करते हैं
तो हम जिस डायरेक्शन में अपने माउस को मूव करते हैं उस डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। अगर आप अपने माउस को राइट हैंड साइड पे मूव करोगे तो आपका पॉइंटर भी राइट हैंड साइड पे मूव होगा। अगर आप अपना माउस लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे तो आपका पॉइंटर भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा। इसी तरह से हम अपने माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं हमारा पॉइंटर भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसी डायरेक्शन के ऊपर मूव होता है।